Global Film Awards and FinTech for hosting two wonderful events. The first one will be in Bali, Indonesia this January, and the second one will be in Vietnam, February 12th. I'll be singing for you. Please follow me at Priya Music to hear more about my music, and looking forward to meeting all of you in person. See you there. Hi, my name is Elmer Cortez, also known as El Cortez. I am a singer-songwriter and a recording artist from Hollywood, California. But I was born in El Salvador. You may know me as one of my songs, El Llamar de Pasión, is in the movie Crash with Sandra Bullock, which won an Oscars Academy Award in 2006. I have recorded 34 albums, written 3 books, and produced 1 movie. I want to congratulate FinTouch and the Hollywood Global Film Festival in Bali, Indonesia. Sorry, I'm not there, but I will be in Vietnam, and I will see you all in the red carpet. Hello everyone, my name is Crystal Sierra, and I would like to thank and congratulate FinTouch and the Hollywood Global Film Festival for allowing me to come and perform in Bali on January the 14th. I'd love to see everyone there. Can't wait to meet you. Some of you may know me. I'm an actress, music producer, and recording artist. I've been in such films as Poetic Justice with John Singleton, A House Divided that's currently playing on All Black Movie Channel on the streaming networks, and my music can be found all over YouTube, Spotify. I've been signed to Virgin Records as their Latin Queen of Hip Hop artist. So I just look forward to performing for you all and singing some heartfelt music, and I just can't wait to see you all in Bali. Ciao. My name is Patrick Kilpatrick. I'm an American movie star from Hollywood with over 200 films and TV shows. You may know me from movies like Minority Report with Tom Cruise, Eraser with Arnold Schwarzenegger, Last Man Standing with Bruce Willis, Under Siege 2 with Steven Seagal, and Death Warrant and Blackwater with Jean-Claude Van Damme. I want to congratulate FinTalk and the Hollywood Global Film Festival in Bali, Indonesia. It will be a great event to foster global goodwill and creativity. Have a great time out there, and I'll see you at the Hollywood Global Film Festival in Ho Chi Minh City on February 12th, 2023. Have a great time in Bali. My name is Chanda Tresvant, aka Trapanese, and I'm a recording artist, runway model, and actress from Los Angeles, California. You may know me from the movie Hanging On to Love, or my 3 singles, most popular songs, Don't Look at Me, What He Looking For, year of 2023, and I'll see you there January 14th. Hi there, it's Sherry Pettigo. I am in Las Vegas right now about to do a show right before 2023, and I want to say hello to you guys in Vietnam and to give you a little bit of an eyes view of the stage, and I want to congratulate everybody there and Hollywood Global Film Festival and FinTalk. From sunny California on Christmas Day, this beautiful day. I am so excited to congratulate FinTouch and the Hollywood Global Film Festival on this momentous occasion. We're going to have 2 wonderful meetings in Southeast Asia. February the 12th in Vietnam and January 14th in Bali, Indonesia. I am so proud and honored to be entertaining you folks. My name is Hugo Castillo, and I'm an entertainer and opera singer. Perhaps you have seen me in Hollywood. दोस्तों, ये जो 2 इवेंट हुए थे, उनमें से छोटी सी झलक आपको एक इवेंट की मैं दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. With Las Vegas and around the world. Thank you.
applause. Welcome Malaysia. Welcome to Singapore team. Cambodia. Indonesia. Thailand. Taiwan. Vietnam. A big applause. Welcome Miss Yo. Come on the stage. Ladies and gentlemen, please give a big applause. Welcome to Mr. Thomas Williams, CEO FinTosh. Good afternoon, everyone. I am William Thompson. I'm the COO of FinTosh Corporation. Very excited to be here today. FinTosh wants to be a part of the growth all across the world. Binance has recognized FinTosh as one of the top 5 blockchain companies in the world. Everyone in the world will know the name FinTosh. Thank you, everyone. Applause. Welcome Mr. Michael. Hello Vietnam, my name is Michael. FinTosh has been rated one of the highest audited company. Trader like to use FinTosh platform. We can achieve the IPO in 2025. Join us to be part of the unicorn. Thank you everybody. तो दोस्तों आपने दोनों वीडियो देखे। अब चलते हम लोग प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज थोड़ा मुझे अफसोस जरूर हुआ दोस्तों, जो इंटरनेशनल जूम मीटिंग रखी गई थी, तो ना तो उसका प्रेजेंटेशन मुझे सही लगा, ना उसकी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही थी, ना उसने मैनेज जूम को सही तरीके से किया, और 100 कैपेसिटी की जूम लेके आ गया। वो कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ में जब अंगूर मिलता है तो ऐसे ही होता। उसके नसीब में था अपलाइन बनना। अब क्या कर सकते हैं, ना उसको प्रेजेंटेशन आता है। होता है कभी कभी किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के हाथ में भी कभी कभी फाउंडरशिप जाती है, अपलाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसकी जूम मीटिंग नहीं करते तो अच्छा होता। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखता है आदमी। कंपनी लेवल की जब मीटिंग रहेगी तो अच्छे लेवल पे हो जाएगी। तो मुझे लगा अपलाइन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक शानदार जानदार बेहतरीन प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है FinTosh। दोस्तों FinTosh बहुत ही कम समय में पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है। इंडिया में भी अच्छे लेवल पे काम चालू हुआ है। धूम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छे लेवल पे चालू हुआ है। और जो ग्रोथ आज FinTosh में मिल रहा है, जो डेली की ज्वाइनिंग्स आ रही है, इतना ग्रोथ आप यकीन करो चाहे ना करो, आज तक किसी भी सिस्टम में मैंने नहीं देखा जितना ग्रोथ FinTosh में पर डे ज्वाइनिंग का आ रहा है। और अभी केवल शुरुआत हुई है, पूरा बिगिनिंग है। बहुत ही बेहतरीन रियल जेन्युइन प्रोजेक्ट है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। इसमें जो COO है
वो अभी चेंज हो गया, थॉमस आ गया, एक टकला आपने देखा होगा, अभी वीडियो में भी एक टकले को आपने देखा, वो कंपनी का अब सीईओ बन चुका है। कंपनी के सीईओ मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, अब सीईओ चेंज हो गया इसलिए इसका नाम बोलने की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर टेदोरा वाकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर, ये लोग कंपनी के मैनेजमेंट में हैं। इसके अलावा तकरीबन 70-80 और इनकी मैनेजमेंट में टीम है, स्टाफ हो गया, टीम हो गई, काफी सारे लोग हैं। और आपको सिंगापुर की ऑफिस, अभी लेटेस्ट सिंगापुर में ऑफिस चालू की है, अमेरिका में पहले से ही है, और कंपनी यूएसए बेस्ड, कैलिफोर्निया। आपको मैं इसके रजिस्ट्रेशन की लिंक, गवर्नमेंट के साइट की लिंक दे दूंगा, वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगा, वो सारा आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक कर सकते, वो सारा कुछ चेक कर लिया, आप भी चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई आपका अमेरिका में फ्रेंड रहता है तो उसको भी कैलिफोर्निया इनके एड्रेस में भेज के वेरीफाई करा सकते। लेटेस्ट इनके साथ में एक सऊदी अरब की रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके 18% की पार्टनरशिप ली है। इसके पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली थे, आपको यूट्यूब पे भी काफी सारे उनके पार्टनरशिप के वीडियो के काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, न्यूज मिलेगी। लेकिन परसेंटेज का जब सेटअप नहीं बैठा तो मॉर्गन स्टैनली को टर्मिनेट कर दिया। 33% देने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, उससे ज्यादा कंपनी देने को तैयार नहीं थी। तो 18% में इनको $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ एक रॉयल फैमिली का पार्टनर मिल गया, उनके साथ शेयर होल्डिंग। इसलिए अब आपको जो भी न्यूज आएगी पुरानी, उसमें मॉर्गन स्टैनली होगा, अब मॉर्गन स्टैनली नहीं है। तो मॉर्गन स्टैनली ने भी न्यूज दिया है कि मेरा फिनटॉस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, फिनटॉस ने ब्लॉकचेन बनाने का काम 2019 से चालू किया। 2019 से इन्होंने ब्लॉकचेन बनाना चालू किया, हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, और बनाते बनाते काफी हद तक इन्होंने 2021 तक ब्लॉकचेन को रेडी कर दिया। जब इन्होंने ब्लॉकचेन को रेडी कर दिया, जिसके अंदर सुपरवाइजरी नोड्स, जीरो नॉलेज प्रूफ, डेफी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट, ये सारा बनाना चालू कर दिया। जब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बन के रेडी हो गई तो इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अमेरिका में जो ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया इस टेक्नोलॉजी कि आपने बहुत ही यूनिक एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाई, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। दोस्तों, इनकी जो ब्लॉकचेन, इस ब्लॉकचेन के अंदर कई सारी चीजें इंटीग्रेट होती जा रही है, डे बाय डे, वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ। डिजिटल करेंसीज, रिकॉर्ड कीपिंग, सिक्योरिटीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कई सारी चीजें। इसमें से रेमिटेंस आ गया, P2P लेंडिंग आ गया, माइक्रो फाइनेंस आ गया, उसके अलावा इक्विटी आ गई, डेरिवेटिव्स आ रहे, ओनरशिप भी आ रही है। हर वीक में, हर 10 दिन में इनके वॉलेट्स में, इनके एप्लीकेशंस में आपको नई नई चीजें देखने को मिल रही होगी। जितने भी ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों कि जिसको हम किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में यूज कर सकते हैं। वॉलेट के साथ साथ ये पूरा प्रोग्राम भी वहां पे हम देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आपका मेटामास्क हो, चाहे आपका ट्रॉन लिंक प्रो हो, या फिर टोकन पॉकेट हो, और कई जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, किसी भी वॉलेट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज, एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज, वॉलेट डिसेंट्रलाइज, और इनके साथ बनाया हुआ लेंडिंग बोरोइंग
और इस लैंडिंग बोरोइंग के कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों सर्टिफिकेट मिला है सर्टिक का। जितने भी क्रिप्टो के जानकार है उनको मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, सर्टिक किस कंडीशन में मिलता है? कई सारे लाइनिंग में है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े क्रिप्टोज जिनको सर्टिक का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, पापड़ बेल रहे, ऑफर कर रहे, लेकिन सर्टिक नहीं देता है। आज इथेरियम की अगर बात करूं, जो बिटकॉइन के बाद सेकंड नंबर पे है, उसको भी 2.5 साल तक इंतजार करना पड़ा ये सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब चेक करना, जितनी जितनी उसके अंदर खामियां थी, जब तक वो सुधारता नहीं गया तब तक सर्टिक ने सर्टिफिकेशन देना बंद कर दिया। बोले जो आपने एल्गोरिदम और कोडिंग डाली हुई है उस कोडिंग के हिसाब से आपका प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, पहले उसको सुधारो। और जब पूरा सुधर गया, कंप्लीट कर दिया, तब जाके सर्टिक ने इथेरियम को सर्टिफाई किया। तो आप सोच सकते हो सर्टिक का सर्टिफिकेशन कितनी मायने रखता है। आज दुनिया में 75% क्रिप्टो लवर्स केवल सर्टिक का सर्टिफिकेट देख के फिनटोच में जुड़ रहे, क्योंकि सर्टिक ऐसे ही सर्टिफिकेशन नहीं देता है। और सर्टिक ने फिनटोच को जो सर्टिफिकेशन दिया है दोस्तों, बाकायदा मेंशन किया है कि ये लैंडिंग बोरोइंग का काम करते हैं। आप देख सकते हैं लैंडिंग बोरोइंग के काम के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए बाकायदा मेंशन है। ट्रस्ट स्कोर कितना है? 87। बाइनांस का चेक कर लेना, 88 है। 87 स्कोर बहुत ही गुड कहलाता, और ये फिनटोच को मिला। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, क्योंकि ये क्लियर करता हूं तो यार ये आगे बढ़ता नहीं है, इसलिए मिल गए। चलो, साथ ही साथ ये मुझे मार्कर नहीं लेना चाहिए, मार्कर लेता हूं तो स्लाइड आगे नहीं जाती। बाइनांस जैसे वेबसाइट पे एक न्यूज आई है जिसके अंदर ये लिखा है कि फिनटोच वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिप्टोज के अंदर हाईएस्ट स्कोर रैंकिंग सिस्टम है। हाईएस्ट स्कोर वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिप्टोज में, और बाकायदा यहाँ पे मेंशन किया है कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ। और यहाँ पे बाकायदा दोस्तों लिखा गया है, मुझे वापस दोबारा वो मार्कर लेना ही पड़ेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको नजर जानी चाहिए उस पर। ये देखिए, ये इतनों को पढ़ लीजिए आप, ये क्या लिखा है। फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। यहां पे भी पढ़िए क्या लिखा हुआ, फेयरली डिसेंट्रलाइज। पढ़िए, जहां जहां मार्क कर रहा हूं वहां पढ़ते जाइए। और ये बाइनांस के साइड पे है दोस्तों, कहीं इधर उधर नहीं है। इनके साथ जो 100 सुपरवाइजरी नोड है, वो वर्ल्ड की बहुत अलग अलग बड़ी कंपनियां हैं जो क्रिप्टो में काम करती, इन्वेस्टमेंट में काम करती, वेब3 में काम करती है, फाइनेंस सेक्टर में काम करती, बोरोइंग में काम करती। लगभग 34 से 35 कंट्री के वो अलग अलग कंपनी है, जिसमें अगर कुछ टॉप मोस्ट में नाम लेना चाहूं दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया से बिडयू, सिंगापुर से लिंको, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से, और कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से। ऐसी टोटल 100 है। कितनी है? 100। आप लाइव चेक कर सकते हो कौन कौन से कंट्री से है, क्या क्या है, सारा कुछ लाइव चेक कर सकते हो।
अब ये सारा कुछ बनने के बाद कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी के बगैर बोरोइंग सिस्टम चलेगी कैसे? लोन लेगा कौन? पैसा देने वाले तो बहुत है, लेकिन उनको जनरेट कहां से करेंगे? आपसे पैसा लेने को तो ले लेंगे, लगाएंगे कहां जब लोन लेने वाला ही रेडी नहीं है? तो ये क्रिएट करने के लिए नवंबर से ये लोग अलग अलग कंट्रीज में रोड शो और इवेंट करते जा रहे हैं। जो सुपरवाइजरी नोट्स है उनका भी काम वही है, कम्युनिटी क्रिएट करना, बोरोवर लेके आना, ट्रेडर को सिस्टम समझाना, सिस्टम में लाना। और ये जो रोड शो चालू किया, इनमें कई सारी कंट्रीज में हुए। सिलिकॉन वैली में हुआ, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद वियतनाम। अभी आगे का शेड्यूल आना बाकी है और बहुत जल्द इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसके लिए इन्होंने कई सारे हैकाथॉन इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए। नवंबर में भी किए, अक्टूबर में भी किए, दिसंबर में भी किए, अलग अलग कंट्रीज में, ताकि कम्युनिटी इकट्ठी हो। क्योंकि जो प्रोजेक्ट लेके आए उस प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो इक्विटी आने वाली है नास्डैक स्टॉक मार्केट में, जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, उसके लिए ये कॉइन भी फ्री दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। जितने भी लेंडर, इन्वेस्टर इनके सिस्टम में आएंगे उनके लिए 30% निकाला है। 18% दिया है जिन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, सऊदी अरब की रॉयल फैमिली, उनको, और 52% कंपनी ने खुद रखा। ये कैसे हमारे लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका भी आगे कैलकुलेशन में बताऊंगा, किस बेसिस पे हमें ये फ्री मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये जो इक्विटी है FTH कॉइन की, ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में एज अ शेयर, एज अ इक्विटी। इन्होंने इसलिए टारगेट रखा है कि दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर, जिसमें यूजर भी हो सकते हैं, वैलेट यूजर्स भी हो सकते हैं, बोरोवर हो सकते हैं, हमारे जैसे लेंडर हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर लोग आने चालू हो। जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद 2025 में FTH कॉइन को इक्विटी में कन्वर्ट करके फिनटॉच के नाम से ये नैस्डैक में अपना IPO लिस्टिंग करेंगे। ये लिस्टिंग होने के बाद इनका मार्केट कैप चला जाएगा दोस्तों $10 बिलियन, जिससे कंपनी हो जाती है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होते ही पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का नाम होता है, क्योंकि दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनियां बहुत कम है। तो ये नास्डैक में लिस्टिंग हो जाएगी। अब ये सारी चीज देखने के बाद आपको मैनेजमेंट, कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी की ब्लॉकचेन, कंपनी का कॉइन, कंपनी की इक्विटी, कंपनी का लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट, कंपनी का अभी एक्सचेंज लॉन्च होने जा रहा है डिसेंट्रलाइज, ये सारी चीजें इनबिल्ट है और सारा का सारा ट्रांसपेरेंट। अब इस सिस्टम के साथ हम लोग कैसे जुड़ सकते, कैसे प्रॉफिट कर सकते, कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी ये कहां से जनरेट करती है, क्या सही में जनरेट करती है या रोटेशन करती है, ये सारी चीजें हम लोग देखें। इस सिस्टम में एज ए लेंडर हम लोग जुड़ते हैं। अब शुरुआत कैसी करें? एज ए लेंडर शुरुआत करेंगे $100 और $100 के मल्टीपल में आप अपना इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। अब काफी सारे लोग पूछते हैं, सर कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, क्या इनका कॉइन मिलेगा? अब जब आप बता रहे हैं कि इनका कॉइन है, ब्लॉकचेन है, इक्विटी है, तो हमें क्या इक्विटी मिलेगी या कॉइन मिलेगा? दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें आप 3 चेन की कोई भी करेंसी लगा सकते हैं, बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन और इथेरियम चेन। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, BEP20 हो गया,
या फिर बीएनबी हो गया, TRC20 हो गया या ट्रॉन हो गए, BEP20 हो गया या फिर इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, लाइटकॉइन हो गया। ऐसी कई सारी करेंसी लगा सकते, $100 के मल्टीपल। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो केवल 7 दिन के लिए रहता है, 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट। और ये 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि कंपनी आपका पैसा जो बोरोवर को लोन देती है वो भी 7 दिन के लिए देती है, और इस 7 दिन आपको डेली का 1% दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको डेली का 1% यानी कि $100 पर डे आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जैसे 7 दिन आपके पूरे होते, आप उसको चाहो तो री इन्वेस्ट कर लो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पूरा कैपिटल और प्रॉफिट लेके क्विट कर सकते। आपको लगता है सब बेहतरीन है तो आप री इन्वेस्ट करोगे। आपको लगता है नहीं यार मुझे अब कैपिटल और प्रॉफिट लेके निकलना है, आप निकल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। यहां तक क्लियर है? अब आपने ये डेली आने वाला प्रॉफिट अगर विड्रॉल नहीं किया तो उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है, वो एक बार देख लो। आपने कितना लगाया था? 10,000 का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। डेली 1% आ रहा है, मतलब $100 आपको आ रहे हैं। अब ये $100 पे डेली पड़े पड़े आपको 1.5% मिलेगा भाई, डेली का। अगर इसको हम 1 महीने के लिए विड्रॉल नहीं करते तो कितना परसेंट छूटता है देखो, टोटल कंपाउंडिंग करके 1 महीने का। अगर डेली विड्रॉल करोगे तो 30% हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे इसमें है नहीं। अगर विड्रॉल नहीं करते प्रॉफिट को तो 38.1%। अब ये प्रॉफिट आपका है, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। अब आज एक भाई का फोन आया था, भाई साहब बोले यार ये डेली, चलो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आया, लेकिन जो डेली हमें प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 1.5% होगा, तो वो भी कंपाउंडिंग हो गया क्या? 7 दिन के लिए लॉक जाएगा क्या? मैंने बोला नहीं भाई साहब, कोई लॉकिंग नहीं है। 24 घंटे तक आप अगर विड्रॉल नहीं करते हो तो अपने आप उसके ऊपर कंपाउंडिंग चालू होता है 1.5% पर डे का प्रॉफिट पे। इन्वेस्टमेंट पे तो आपको 1% ही मिल रहा है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, जो आपको डेली का प्रॉफिट आ रहा है उस पे 1.5%। जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करने जाओगे तो आपको 5% की फीस लगेगी प्रॉफिट पे, और कैपिटल विड्रॉल करने जाओगे तो किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं है, 0। वो आपका कैपिटल है, उस पे कंपनी का कोई हक नहीं है, ना सिस्टम का कोई हक है। वो पूरा का पूरा आपको मिलना चाहिए, और मिलता है विदाउट एनी डिडक्शन। इन्वेस्टमेंट पे 1%, प्रॉफिट पे 1.5%। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चले। ओके, अब चलते हैं। वीकली कितना बेनिफिट हो सकता है, मंथली कितना होगा, डबल कब होगा, और मल्टीपल कितने टाइम में होगा। 4 कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाले हैं। अगर आप 7 दिन तक प्रॉफिट नहीं विड्रॉल करते तो 1.5% आपको प्रॉफिट पे कंपाउंडिंग मिलता है, तो 7 दिन का 9% बनता है। वही अगर 1 महीना नहीं करते तो ऑन एन एवरेज 37.5 से 38% तक मंथली बैठता है, और आप 63 दिन तक उसको छेड़ते नहीं है, तो आपका ये 100%। ये प्रॉफिट बता रहा हूं मैं, कैपिटल एज इट इज है। और अगर कहीं 365 दिन तक आपने रखा तो यही आपकी अमाउंट 64 गुना हो जाती है। $100 के 6,400, $1,000 के 64,000, $10,000 के 6,40,000 विद इन अ ईयर। कैलकुलेशन भी मैं आप सबको भेज चुका, आप खुद अगर मैथमेटिक्स परफेक्ट है तो आप भी निकाल पाओगे। तो ये क्लियर हो गया पहला पार्ट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ
ROI। अब चलते हैं रेफरल इनकम, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी लीडर्स बैठे हैं और मैं सभी लीडर्स को लाइक करता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं, जो भी ये कहता है कि भाई साहब मैं बढ़िया कमा रहा हूं, अच्छी अर्निंग हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी चाहते हैं, ये पहली एक ही इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पे हमारे साथ वाले कमाते हैं तो हमें जलन नहीं होती है, खुशी होती है। बाकी दुनिया का कोई भी बिजनेस देख लो, जितने भी कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा कमाएंगे तो उसके पेट में जलन चालू हो जाती है। लेकिन ये नेटवर्किंग ही सबसे ऐसा बेस्ट फील्ड है जहां पे खुशी होती है और हमें भी लगता है कि हम भी आगे बढ़े और हमारे साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाए। तो आइए देखते हैं रेफरल प्रोग्राम। ये आप है, आपके पहले लेवल में जितने लोग जुड़ेंगे और उनको डेली का जो 1% का ROI जाता है, उसका 15% आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। उसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ निकाल के रखा है एग्जांपल के तौर पर। मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हुआ, तो जिन्होंने बिजनेस किया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनको तो 1% जाना है, मतलब $100 जाने हैं। उस $100 के 15% डेली आपको मिलने हैं, जो बनते हैं $15। ये तो हो गया आपका पहला लेवल। सेकंड लेवल की बात करते हैं। सेकंड लेवल पे जितने भी लोग जुड़े, जितना भी इन्वेस्टमेंट लगा है, आदमी एक हो चाहे 10 हो, उनके अर्निंग पे आपको 10% मिलेगा। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके सेकंड लेवल में $50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, उनको 1% जाना है, जिन्होंने भी लगाया $500। उस $500 का 10% आपको जाना, मतलब होता है $50। पहले लेवल पे इस कैलकुलेशन से $15, दूसरे लेवल पे $50, मतलब डेली का आपका $65 सेट हो गया। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। और दोस्तों पैसिव इनकम में बहुत ताकत है। जो वन टाइम मिलता है ना, जैसे वो बाढ़ का पानी बोला जाता है, आया और बह के चला गया। एक बार काम करो, एक बार ले लो, खत्म कहानी, खा पी के हाथ पोंछ लिया। लेकिन ऐसे प्लानों में ये जो इनकम आती है, ये रेगुलर बेसिस पे आती है, जस्ट लाइक सैलरी। सैलरी तो महीने महीने मिलती है, ये डेली डेली। इतनी हैंडसम पैसिव इनकम, 2 ही लेवल है। अब ऐसे कंडीशन में हमारे लीडर्स क्या करेंगे? तो लीडर्स के लिए कंपनी ने एक बहुत ही शानदार टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव बनाया, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। 5 अलग अलग रैंकिंग है, पांचों के 5 कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। पहले रैंक के लिए आपको 5 डायरेक्ट चाहिए। अब ये 5 डायरेक्ट $100 के होंगे तो भी चलेंगे, और टोटल टीम का बिजनेस चाहिए $50,000। अब आप बोलोगे कि यार ये 2 ही लेवल है, कि मेरे 2 लेवल में होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये $50,000 का जो बिजनेस है, ये आपके एंटायर टीम में किसी भी लेवल में हो जाए, किसी भी डेप्थ में आ जाए, सिंगल लेग में आ जाए या 5 लेग में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाउंट केवल 50,000 चाहिए। 100वें लेवल में आएगा तो भी चलेगा, तब आप बनते हो जनरल मैनेजर। और जैसे ही जनरल मैनेजर बनते हो दोस्तों, दूसरे दिन से पर डे की आपकी मिनिमम $100 की इनकम चालू। पर डे $100। अब ये $100 सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? जो आपके नीचे एंटायर टीम का $50,000 का बिजनेस हुआ है, उनको डेली 1% जाएगा, मतलब $500। तो उस $500 का GM को 20% दिया जाता है, जो बनता है $100, मतलब महीने का हो गया $3,000। भाई साहब एक हैंडसम सैलरी चालू हो गई आपकी 2.5-3 लाख। आगे चलते हैं। अब आपके नीचे 2 GM, आप तो GM बन गए। GM कब बने? जब आपने 5 डायरेक्ट किए,
$50,000 का बिजनेस किया तब जीएम बने। अब उस 5 डायरेक्ट में से कोई भी 2, जब आपके जीएम बनते हैं 2 लेग में, प्लस $1.5 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट बनते ही $250 से $300 की पर डे की अर्निंग चालू हो। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 30% निकाला है डेली के आउटपुट का, जीएम के लिए 20, वीपी के लिए 30। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में 2 वीपी बनते हैं और $5 लाख का बिजनेस, पूरे टीम में कहीं पे भी 2 वीपी चाहिए, तो आप बन जाते हो सीनियर वीपी। सीनियर वीपी के लिए 5 लाख का जो डेली का आउटपुट बनता है उसका 40% निकलता है। अब 5 लाख का 1% कितना बना? 5,000। 5,000 का 40%। आप बोलोगे आपने तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, 2,000 आना चाहिए, आप तो 600 से 1,500 बता रहे हो पर डे, बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का आपके नीचे 2 वीपी बने हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो बचता है वो आपको दिया जाता है। इसलिए तो हर एक रैंक में 10-10% बढ़ाया गया है, जीएम में 20, वीपी में 30, सीनियर वीपी में 40। आगे चलते हैं। जैसे आपके नीचे 2 सीनियर वीपी अलग अलग लेग में और $20 लाख का बिजनेस एंटायर टीम से, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही डेली की आपकी इनकम $1,500 से लेके $5,000 पर डे। यहाँ पे 50% निकालो। जो आपके टीम में $20 लाख का बिजनेस हुआ है उसका 1% टीम को जाना है, मतलब $20,000। $20,000 का 50% जो होता है $10,000, लेकिन उस $10,000 से 2 सीनियर वीपी का भी कमीशन माइनस होगा, इसलिए ये रेंज दे रखी है। क्लियर? अब लास्ट रैंक देखते हैं। जैसे आपके नीचे 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एमडी। एमडी की डेली की इनकम $13,000 से लेके $30,000 पर डे। यहाँ पे निकाला गया है 60%। क्लियर? टोटल 60% रैंकिंग में आरओआई का मतलब 0.6% हो गया, ज्यादा नहीं है। अब कैलकुलेशन करना। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब मैं भी जीएम हूं, मैं जब तक जीएम था मुझे डेली के $100 आ रहे थे, अब तो मेरे नीचे भी कोई जीएम बन गया एक ही लेग में, क्योंकि दूसरे लेग में बनेगा तो आप वीपी बन जाओगे, दूसरे लेग में तो बना नहीं है। अब मेरा क्या होगा? अब आपको क्या मिलेगा देखिए। जैसे आपके नीचे जीएम के नीचे जीएम आता है तो नीचे वाले जीएम को $100 चालू होता है, लेकिन आप जीएम कब बने? जब आपने 5 डायरेक्ट किए, तो उन 5 में से एक जीएम बना, 4 लेग तो बाकी है, उस 4 लेग से आपको 20% आना ही है आरओआई का, और जो जीएम बना उससे भी आपको 20% आना है। जीएम को जितना जा रहा है उसका 20%, तो कम से कम $20 तो ये लेग से चालू ही है, और अदर लेग से टोटल आरओआई का 20% आ रहा है। क्लियर? सेम कंडीशन देखिए एमडी की क्या होती है। एमडी में कंपनी क्या करती है? एमडी के नीचे अगर कोई एमडी बन गया, ऐसे कंडीशन में कंपनी अपने डेली के प्रॉफिट का 10% निकाल के ऐसे एमडीज को देती, कंपनी के टोटल प्रॉफिट का डेली। क्लियर? अब आगे चलते। जो मैंने आपको स्टॉक मार्केट की बात की थी कि 2025 में इनका इक्विटी लिस्टिंग होने जा रहा है नास्डैक में दोस्तों। अब यहाँ पे ये फ्री इक्विटी हमें कैसे मिलती है? मान लो आपने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपको डेली का आरओआई का अर्निंग आ रहा है $100, तो आपको डेली $1 वैल्यू का
FTH कॉइन दिया जाता है डेली। या फिर जिसने भी एक एक करके ऐसा $100 का अर्निंग किया है तो उनको भी $1 वैल्यू का FTH कॉइन देता है ROI के अर्निंग। अब ये इकट्ठा होते 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 मान लो आपके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.1 FTH कॉइन इकट्ठा हुआ जो फ्री दे रहा है। कई सारे लोग कॉल करते हैं FTH के बारे में, क्यों दिमाग लगाते हो, फोकट में मिल रहा है। फोकट की चीजों में ज्यादा ध्यान जाता है। अभी भी मैं देख रहा था कोई बिलो बिलो करके पूरे इंडिया में फोकट में लोग कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टर का जो स्टेक रखा है उसमें से दिया जा रहा है, जबकि इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं डाली है। आपने पेमेंट डाली है 1% लेने के लिए, इसलिए आपको ये फ्री दिया जा रहा है। अगर आप पेमेंट नहीं डालते तो ये भी नहीं मिलता आपको। थोड़ा थोड़ा करके 0.1 भी इकट्ठा हो गया तो ये क्या मैजिक करेगा देखो। क्योंकि आज एक FTH का रेट चल रहा है दोस्तों $18,000, और आपके पास कितना इकट्ठा हुआ, एक की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 0.1। और जब ये लिस्टिंग होगा तो इसकी इक्विटी की जो शेयर का रेट रहेगा वो रहेगा 1 सेंट, $0.01। इस रेट से शुरुआत होगी और इसी रेट से आपके पास जो वैल्यू पड़ी है उसके हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। अब आपके पास वैल्यू कितनी है, 0.1 मतलब $1800 आज के हिसाब से, आगे पता नहीं कितना जाएगा। तो इसके हिसाब से आपके पास 1,80,000 शेयर्स को वहां यूनिट बोलते हैं, फ्री मिल गए आपको 1,80,000 शेयर फिनटॉच के। अब मान लो ये लिस्टिंग होने के बाद ट्रेड चालू होगी, और ट्रेड होते होते मान लो $1 चला गया, तो क्या कॉस्टिंग बैठेगी भाई साहब, $1,80,000। और कहीं अगर ये $10 पे चला गया, $18 लाख। ये मैजिक है इक्विटी का जो हमें फ्री मिल रही है। ओके, अब खुद के इन्वेस्टमेंट पे आदमी GM बनता है। क्योंकि आज सुबह एक दिल्ली से कॉल आया था, बोले भाई साहब $1,00,000 लगाना है, क्या सेटिंग शूटिंग क्या है। बोला भाई साहब सेटिंग शूटिंग कुछ नहीं है, कई सारी कंपनियां सेटिंग शूटिंग वाली है, वहां चले जाइए, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो खुद के इन्वेस्टमेंट पे GM कैसे होता है। और आप सभी को बोल रहा हूं, कई सारे कॉल आते हैं setting.com के लिए। वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो, जहां पहुंचे वहां चले जाओ, अगर कहीं भी 1% की गुंजाइश हो तो मुझे बताना, मैं आपके साथ में आ जाऊं। मैं लॉजिक बताऊंगा। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ₹1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती है, ना कर रही है। कर रही है तो बताओ कि आपने $100 लगाया, $1 भी आपको कमीशन पे दिया हो, नहीं देती। दूसरा, 7 दिन के बाद आप अपना कैपिटल 100% निकाल सकते हो। तो कहां से कौन सा प्रोविजन है, उन अकल के अंधों को क्या समझाए। ना तो प्लान देखते, ना कुछ देखते, माहौल देखा कूद गए। प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, कैलकुलेशंस क्या है, नहीं पता। माफ करना दोस्तों, क्योंकि बगैर देखे बगैर सोचे जो काम करते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि किसी भी चीज को करने के पहले उसको पूरा स्टडी करें, समझे। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को नहीं समझेंगे आपका आउटपुट नहीं निकलेगा, आप उस कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाओगे। किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट किया बात अलग है। एज ए लीडर अगर हमें फील्ड में उतरना है तो हमें हर एक चीज की जानकारी लेना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सामने जिसके सामने आप प्लान देते हो, पता नहीं वो आपसे ज्यादा होशियार हो,
आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, ऐसे कंडीशन में आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकते हो। इसलिए हमें हर एक चीज समझना सीखना जरूरी है। अगर कोई खुद का इन्वेस्टमेंट करके जीएम बनना चाहता है तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन बनाई है। जैसे आप हो, $1000 एग्जाम्पल के लिए दिया है, आप $100 भी लगा सकते हो। इसका आपको डेली का 1% मिलना है जो $10 बनता है। हजार के 5 डायरेक्ट लगा दिए या फिर 100 के 5 लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके कमीशन ज्यादा निकलने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहाँ पे भी $50 आएगा 1% के हिसाब से, और नीचे लगा दिया 50,000 एक ही आईडी में। वो किसी के भी नीचे डालो, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है अलग अलग लेग में होना चाहिए करके। इसका भी $500 आएगा। ये तो हो गया आरओआई। कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूं मैं, डेली कितना विड्रॉल कर सकते। अब इनके कमीशन भी निकलेंगे। 5,000 का ऊपर के आईडी पे 15%, क्योंकि 5,000 का $50 बनता है, उसका 15% $60.5। अब नीचे जो 50,000 की आईडी है तो टॉप वाले आईडी को 10% जाएगा, 2 लेवल है तो 500 का 10% $50। उसके अलावा नीचे जो आईडी है उसके बीच वाले आईडी में 15% उठेगा, 500 का 15% $75। साथ ही साथ आप जीएम बन चुके हो, इसका $100। ये टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो डेली का अर्निंग एक जीएम का खुद के इन्वेस्टमेंट पे $792 पर डे और $23,775 पर मंथ, जिसको आप डेली बेसिस पे विड्रॉल करते हो तो ये कैलकुलेशन कंपाउंड करते हो तो बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये प्लान के साथ मैंने लिया है, रेफरल हो गया, उसके बाद स्टॉक मार्केट हो गया, डेली 1% हो गया, विड्रॉल नहीं करते हो तो कंपाउंडिंग पे 1.5% हो गया, ठीक है, जीएम रैंक हो गया। अब ये सारी चीज तो आपके समझ में आ गई। अब दिमाग में जितने भी नए लोग बैठे उनके दिमाग में एक चीज चल रही है, भाई साहब ये तो बहुत बड़ा झोल है यार, कहाँ से दे पाएंगे। बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनियां गई, ये भी अभी महीने 2 महीने में उठ जाएगी। यही दिमाग में चल रहा होगा नए लोगों जो बैठे। उन्हीं लोगों को क्लियर करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि फिनटॉच के अंदर रियल रेवेन्यू जनरेट कैसे हो। ठीक है, अब सिस्टम क्या करता है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया एज ए लेंडर। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, सर्टिक ने सर्टिफाई किया है पूरा कैलकुलेशन करके, सारे एल्गोरिदम और कोडिंग देखने के बाद, वरना सर्टिक कभी भी सर्टिफिकेशन नहीं देता है, चाहे कितना भी पैसा दो। एक बार नहीं पता है तो पता कर लेना। अब हमारे से जो पैसा लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग में दिया जाता है ट्रेडरों, उसको बोलते हैं बोरोअर। हम है लेंडर, इन्वेस्टर, हमारे इन्वेस्टमेंट पे 1% दिया जाता है, और जो बोरोअर लोन लेते हैं उनको डेली का 2% और 2.5% में दिया जाता है। एक दिन के लिए कोई लोन लेता है तो 2.5%, और 7 दिन के लिए कोई लोन लेता है तो 2% पर डे। आपका भी 7 दिन के लिए और उनका भी मैक्सिमम 7 दिन के लिए, 1 और 7 दो ही ऑप्शन है। टोटली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट है। अब ये लोन प्रोवाइड कौन करता है, जैसे ही कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उनमें से 10 रैंडमली 10 सिलेक्ट होते, और उसमें से 3 की प्राइवेट की जब कनेक्ट होती है, मैच होती है, तब जाके डिसेंट्रलाइज तरीके से ये लोन प्रोवाइड। लोन प्रोवाइड होने के बाद भी इनका काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद चलती है पूरी मॉनिटरिंग कि जिस ट्रेडर को हमने लोन दिया उसकी क्या पोजीशन चल रही है, बंदा कमा रहा है कि गवा रहा है। कमाएगा तो अच्छी बात है,
गवाएगा तो लोचा हो जाएगा, और वो लोचा ना हो इसके लिए क्या कैलकुलेशन डाले हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ट्रेडर अगर लॉस करेगा तो भी फिनटॉच लॉस नहीं करती है, लोन रिकवरी अपने आप होती है प्रॉफिट के साथ। 3 चेन मिलती है उसको ट्रेड करने के लिए, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और सनस्वैप। साथ ही साथ चौथी चेन में भी काम कर सकता है जिसको बोलते हैं क्रॉस चेन। इसके अलावा रैप भी आने वाला है। ओके, अब जितने भी लोग ट्रेड कर रहे, जिन्होंने लोन लेकर रखा है, उनके लोन वैलेट दिखते हैं आपको। टॉप मोस्ट जो अर्नर है, प्रॉफिट निकालने वाले, उनके पूरे लिस्ट आपको मिलती है, किस कॉइन में उन्होंने प्रॉफिट निकाला है, कितने अच्छे लेवल पे निकाला है, कितना परसेंटेज में निकाला है, आज पूरा सबसे अच्छा ग्रोथ किस टोकन ने दिया है, सारा का सारा आप लाइव चेक कर सकते हैं। और जो लोन वैलेट के लोग हैं उनके वैलेट पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो कि उनके लोन का क्या क्या ग्रोथ हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है तो 2% देने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस हो गया तो। अब ये दोनों कैलकुलेशन में दिखाता हूं, प्रॉफिट का भी एग्जांपल और लॉस का भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी डेली बेसिस पे प्रॉफिट ही करे, लॉस भी करते होता है दोस्तों, लॉस भी होता है। कोई दुनिया का दिग्गज नहीं ये कह सके कि मैं डेली सिर्फ प्रॉफिट ही करता हूं, वन साइड कभी नहीं चलता है, जहां प्रॉफिट है वहां लॉस भी है। तो यहाँ ट्रेडर प्रॉफिट के साथ जब लॉस करते हैं तो फिनटॉच को तकलीफ क्यों नहीं आती है, यहां आपके समझ में आ जाएगा पूरा। मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं। हम लोग है लेंडर, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमें डेली का 1% मिल गया, ठीक है, ये कैलकुलेशन दे दी डिडक्शन के साथ। अब आते हैं बोरोवर पे। बोरोवर कौन है? ट्रेडर। अब ट्रेडर जब लोन लेने जाता है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, एक दिन के लिए चाहिए 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए पर डे 2%। ओके, अब यहाँ पे 4 मार्जिन है। आप जब खुद अपनी एप्लीकेशन चेक करोगे, आप अपने लेवल पे देखोगे 20%, 30%, 40%, 50%, 4 ऑप्शन है मार्जिन के, एक दिन का भी है, 7 दिन का भी। एक एग्जांपल देता हूं 50-50 का, जिसमें 50% ट्रेडर का अमाउंट होता है, 50% सिस्टम से मिलता है। मान लो 1000 उसके पास पड़ा है, 1000 का उसने लोन ले लिया 7 दिन के लिए, 2000 पे ट्रेडिंग चालू किया। आज मान लो उसने 7% का प्रॉफिट किया, $140, क्योंकि ट्रेडिंग तो 2000 पे कर रहा है। अब 140 में से सिस्टम का कितना हुआ? लोन तो उसने $1000 का लिया था, जिसका 2% $20 बनता है। वो देने के बाद भी उसके पास $120 बच रहा है। दोस्तों उसने 7% प्रॉफिट किया था, तो उसको अगर वो खुद के कैपिटल पे करता तो उसको $70 का ही प्रॉफिट होता। अब लोन लेके उसने किया है तो उसको कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? जब ये ट्रेड अच्छा करता है, प्रॉफिट करता है, तो ये आपको पॉजिटिव दिखता है। इसको क्या बोलते हैं? विन विन सिचुएशन, कि भाई बंदा बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अब बंदे से गलतियां भी होती है, लॉस भी होता है, और अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? सेम सिचुएशन लेते हैं 50-50, 1000 उसका, 1000 सिस्टम से वो लोन लिया, 2000 पे ट्रेडिंग चालू की। जब ये लोन दिया जाता है तब उसके अंदर मार्जिन का पीरियड डाला जाता है, कितने परसेंटेज तक इसको ट्रेड करने देना। 50-50 में 30% का मार्जिन है दोस्तों। जैसे वो 30% तक लॉस करते करते नीचे पहुंचता है और 30% टच करता है, तो अपने आप उसका ट्रेड क्लोज हो जाता है, जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। हो गया, अपने आप क्लोज हो गया, इसीलिए फिनटॉच सेफ। अब इसका नुकसान कितना हुआ? 30% मतलब 2000 का $600। अब बचा कितना? 1400। 1400 में से 1000 कंपनी ने अपना लोन का निकाल लिया। अब इसने भले एक दिन में लॉस किया हो,
कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है तो 7 दिन का ही लोन इंटरेस्ट लिया जाएगा, $140। अब ये $140 2 आदमी में बांटा जाएगा। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1% का, जो आपका बनता है आपको दिया जाता है, और बाकी का बचा हुआ फिनटॉच का, और बचा हुआ $260 ट्रेडर को वापस उसके वॉलेट में चला जाता है। ये सारा का सारा डिसेंट्रलाइज। दोस्तों ये काफी कुछ चीजें इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन। अब ये सारा कुछ देखने के बाद इसकी जो समरी निकलती है वो ये कहती है कि फिनटॉच हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है ऑडिटेड है, सर्टिफिकेट। दूसरा है रजिस्टर्ड और लीगल कंपनी। तीसरा है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, और चौथा है लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये 4 रीजन आदमी को मजबूर कर देते हैं फिनटॉच करने की। तो दोस्तों ये सारा प्रेजेंटेशन आपको बताया, इसके बाद भी इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन था दोस्तों। मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजें क्लियर करने में आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ चीजें रह गई है जो समझ में नहीं आई है, तो आप लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनमें से किसी भी लोगों को आप कांटेक्ट करके, उनका संपर्क करके उनसे पूछ सकते हो। कई सारे हमारे को-होस्ट है, हमारे टीम के लीडर्स हैं, कहीं भी अटकते हैं तो कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे से बात करवा देते हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन 100% है, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा इसमें से जो भी हमारे को-होस्ट है उसमें से कुछ अपना 1-1 मिनट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कर सकते हैं। जी सर, 1 by 1 राणा साहब। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर। जी सर, माय नेम इज धर्मेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा सर। और मैं इस सिस्टम में सर 15 तारीख से जुड़ा हूँ, 15 फरवरी को। ठीक है। और उसके बाद सर मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो 12 वर्ड जो पैरा है वो मेरी ही गलती से, यानी मेरे यूट्यूब चैनल पे विदाउट एडिटिंग मैंने ही डाल दिया और ध्यान नहीं दिया, तो मेरा आईडी भी हैक हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम जिस तरीके से आप समझा रहे हो सर, मुझे नहीं लगता कि आपका एक जूम लेने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन बचता है। अदरवाइज आप सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, जैसे कि आप ये सर्टिफिकेट के बारे में बताया और ये सारी फुल प्लान जबरदस्त रहा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोस्तों ये सब $500 का मेरा वो आईडी में टॉपअप था, वो लॉस होने के बावजूद भी मैंने अगले ही दिन $100 डाला, और सर आज सुबह मैंने $500, और अभी शाम को फिर से $500, यानी $1100 से मैंने अपना आईडी और टीम बनाना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 200 लोगों का टीम था 5 दिन के अंदर, और उसके बावजूद भी सारी टीम मेरी उधर से इधर अभी धीरे धीरे मूव हो रही है। लेकिन सिस्टम ऐसा जबरदस्त है कि देखिए, एंट्री करना और एग्जिट करना कोई सिस्टम में बहुत, अभी जो स्टार्टिंग टाइम है, मैं ये बोलूंगा जितने भी लोग हैं, 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि 1000 लोगों का टीम हो, जो हमारा जूम हो रहा है उसमें हमें जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इस महीने की लास्ट डेट को आप चेक कर लेना। तो सर थैंक यू, मैं यही बोलूंगा। बहुत अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, क्योंकि मेरा उधर से विड्रॉल वगैरह मैं नहीं ले पाया, लेकिन आने वाले हफ्ते 10 दिन में जरूर मैं अपना एक्सपीरियंस और भी अच्छे से शेयर करूंगा। थैंक यू। वहाँ पे जितने जल्दी आप लोग पीएम बनोगे, जब पीएम बनने तक आप लोगों को इनकम अर्निंग नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 2 ही लेवल है। हाँ जी कुशवाहा जी। हाँ जी सर जी नमस्कार। नमस्कार ऑल फिनटॉच फैमिली, विजय हेयर, भोपाल एमपी मध्य प्रदेश से। साथियों बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है और इतना रिजल्ट मिल रहा है कि आप भी अगर प्रमोशन चालू कर दें तो ऐसे बिजी हो जाओगे जैसे मैं बिजी रहता हूं, और पूरा दिन फोन फोन, ये वॉलेट करना, वो डिपॉजिट करना, ये करना, यानी बिल्कुल भी एक 5 मिनट के लिए बैठ नहीं पाता हूं। आप एक बार शेयर करके तो देखो, आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो।
तो साथियों बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है सर। 2 क्वायरी मार्केट से आई हैं, वो ये है कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट के ऊपर 1.5% मिलता है, क्या हमें उसका भी कमीशन मिलता है अपलाइन को? दूसरा एक और उनको बता दीजिए कि अगर हमको बढ़ाना है पैकेज को, आज हमारा 100 का है, कल हमको 1000 का करना है, तो हम कैसे करें? तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सर के मुखार बिंद से सुनना चाहेंगे, और हमारी जो टीम की क्वेरी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो सर क्लियर हुआ मैं क्या पूछना चाहता हूँ? सर आपके इन्वेस्टमेंट पे ही आरओआई पे डेली कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आपके द्वारा जो भी प्रॉफिट आपके वैलेट में पड़ा रहता है वो कंपाउंडिंग में या री इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता है। अगर वो री इन्वेस्टमेंट में जाता तो वो डेली का आपका 7-7 दिन का नया कॉन्ट्रैक्ट बनता, वो भी 7 दिन के लिए लॉक होता। परसों जो आता वो भी 7 दिन के लिए लॉक होता, नरसों आता वो भी 7 दिन के लिए लॉक होता। यहाँ पे लॉकिंग नहीं है आपके प्रॉफिट से। आपका डेली जो आरओआई आ रहा है वो जब आप विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर 1.5% है, इसलिए उसके ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कमीशन केवल आपके इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट पे जो भी आरओआई निकलता है डेली 1%, उसी के ऊपर ही आपकी रैंकिंग हो चाहे आपका रेफरल इनकम हो जनरेट होता है। कंपाउंडिंग पे कुछ नहीं होता है। रही बात दूसरे सवाल की कि आप एक ही आईडी के अंदर जितनी बार चाहो उतनी बार री इन्वेस्ट कर सकते हो। जितनी बार भी री इन्वेस्ट करोगे हर बार आपका नया कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का इन्वेस्टमेंट करते ही तारीख आपकी काउंटिंग चालू होती है अगले 7 दिन की। अगर आप 10 मिनट के बाद भी दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका भी टाइमिंग उसके 10 मिनट बाद चालू होगा। तो जितनी बार चाहे उतनी बार आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने खुद पहले अपनी $100 की आईडी लगाई तो उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद $5000 की लगाई उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एक आज लगाई थी मान लो एक दूसरे दिन लगाई। आप मिनट मिनट में लगा सकते हो, कोई हर बार नया कॉन्ट्रैक्ट होगा और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग अलग अलग होगा। अगर 1 मिनट भी हो गया तो पहला वाला 1 मिनट में कंप्लीट होगा 7 दिन बाद, उसके 1 मिनट बाद दूसरा आपका कंप्लीट होगा। एक बार फंक्शन खोल के दिखा पाए तो दिखा दीजिए थोड़ा सा, लोगों को एकदम ऑथेंटिकल क्लियर हो जाएगा, तो हमको सुबह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टीम में सर, वो ऑटोमेटिक अपना 1000 का पैकेज कर लेंगे सब लोग। बिल्कुल दिखा देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट अपना वैलेट कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यस सर, यस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना वैलेट, और आज अगर नए लोग हैं तो उनको बता देता हूँ कि अब उनको अलग अलग जगह वैलेट खोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिए। 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। हो गया जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। जैसे मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट है अभी हाँ ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। आप देख रहे हैं ये $100 का पहला एक चल रहा है, ये देखिए। दूसरा चल रहा है $5000 का। जितनी बार चाहो उतनी बार आप कर सकते हो और आपका जो प्रॉफिट निकलता है। लेकिन ये चीज आपको सबसे बढ़िया चीज मुझे ये यहाँ पे ये लगी कुशवाहा जी कि यहाँ पे मतलब अलग 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 पैकेज बनते जाएंगे, आपका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पैकेज नुमा पैकेज टाइप के अलग अलग बटन अलग अलग पैकेज देखेंगे, राइट? आपका टाइमिंग देखो ना, यहाँ पे देखो 1 बजे का है, यहाँ पे 4:10 का है। राइट राइट, ये तो हो गया एक। दूसरा बेनिफिट हमें क्या है कि हमें जो आरओआई आ रहा है और साथ में जो कमीशन आ रहा है, उन दोनों को अगर हम विड्रॉल नहीं करते तो दोनों पे 1.5% का कंपाउंडिंग मिलता है। ये देखिए, ओके। मैं अभी तक $2000 का विड्रॉल कर चुका हूं, उसके बावजूद भी $213 का मेरा ये कंपाउंडिंग में 1.5% के हिसाब से कमीशन बना। गुड गुड, वेरी नाइस सर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 4-5 बार विड्रॉल कर चुका हूँ दिखाने के लिए।
यहाँ पे पहली बार $13 का किया था TRC-20 में, फिर $50 का करके देखा BEP-20 में, फिर $509 का TRC-20 में, फिर $103 का BEP-20 में, फिर $1409। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2000-2100 के आसपास होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, बहुत सारे फोन मुझे आते हैं, मुझे होस्ट बनना है, मुझे होस्ट बनना है। कल से आप सिंगल रहेंगे सर, आपका काम प्रेजेंटेशन देना है, हम फील्ड में कूदेंगे सब लोग, हम लोग और कोई दिक्कत नहीं है। होड़ नहीं मचानी है, काम करना है, धंधा उठाना है। अगर और होस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं होता है, मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, होस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप काम पे कितने स्पीड से लगे हैं, आपने सिस्टम को कितना पहचाना है, सिस्टम की गहराइयां क्या समझी हैं। ये मान लीजिए कल से होस्ट उसी को बनाएंगे जो GM बनेगा, जो GM रहेगा वही होस्ट रहेगा। और बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तो जिसको तो होस्ट करना है जल्दी GM बन जाओ। ये हुई ना बात, उससे क्या है, होड़ नहीं मचेगी। मेरे पास भी काफी फोन आए हैं, तो मैं बस यही, भाई मैं मेहनत करूंगा ना, मैं सिस्टम में जुड़ जाऊंगा, इधर मीटिंग भी सुनूंगा, इधर चैट भी करूंगा, पूरे दिन मेहनत करूंगा, फाइट करूंगा कि मैं जल्दी से GM बन जाऊं, वो जल्दी होस्ट बनने के लिए खड़ा हो जाऊं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पे आईडीज दिखती है, नाम तो पता नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हैं, और काफी सारे लोग हैं वो पता नहीं किसके साथ जुड़े हैं, किसके टीम में है। हमारे टीम में है भी नहीं है, कुछ पता नहीं है। टीम तो मीटिंग तो सबके लिए की जा रही है, क्योंकि इंडिया में काफी सारे ग्रुप चल रहे हैं। तो दूसरे टीम के लोगों को हम क्यों कोच बनाए भाई? हम तो हमारे टीम के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। कोई कंपनी की ऑफिशियल जूम मीटिंग नहीं है ये केवल हमारे टीम को प्रमोशन के लिए, ताकि हमारे टीम के लोगों को प्रॉपर नॉलेज दी जाए, पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाए। आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, एट ए टाइम एक ही जूम में इंडिया के कोने से लोग बिठा के उनको क्लियर किया जाए। इसलिए जितने भी कोर्स मेरे जान पहचान के दिखते हैं या फिर हमारे टीम में है, उनको ही हम कोर्स बनाते। तो आप भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आपके अपलाइन के थ्रू कांटेक्ट में आइए, तो मुझे पता चलेगा कि हमारे टीम में कौन कौन है, ताकि कल आप में से इनको छोड़ के आपको कोर्स बना देंगे, इनके टीम में से होंगे आप। अच्छी बात है, पता ही नहीं कौन कौन है। या तो आपके अपलाइन बता दे कि सर हमारे टीम में ये लीडर्स अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, रिकमेंड करें, उनको कर देंगे कोर्स। आप अपने आप को परफॉर्म तो करो, अपने आप को प्रूव तो करो। जी सर, राशिद जी बोलिए सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका बिजनेस पार्टनर मोहम्मद राशिद, उत्तर प्रदेश बरेली से। बहुत अच्छे होंगे आप लोग, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, जबरदस्त। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर सर ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई। तो यहाँ पर अभी सर ने बताया, विजय सर ने, कि यहाँ होस्ट बनना, को होस्ट बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो सिस्टम मिला है, हम मुझे एक ऐसी अनोखी चीज़ मिली है, वो राइट टाइम पर मिल चुकी है आपको। अब आपका काम क्या है, ये जो सिस्टम आपको मिला है इसको एनालाइज कीजिए, पूरे सिस्टम को समझिए, ये सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। और अगर इन चीजों को आपने समझ लिया और आपने अगर अपने अंदर आग लगा ली ना, आग लगाने का मतलब होता है कि जिस दिन से आपको वो सिस्टम मिला, वो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, जो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में सपने, ड्रीम्स अपने लेकर आए थे, वो क्या यहाँ से पूरे हो सकते हैं? यस, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगी। जैसे कि विजय सर ने बताया कि मैं सुबह से शाम तक कॉलिंग पे लगा रहता हूँ। मैं अपनी बात करूं, मेरा भी वही हाल है। अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब नीचे हैं, मैं ऊपर रूम के अंदर, एक पर्सनल रूम है मेरा, उसी रूम में दिन भर अपनी टीम से मैं बात करता हूँ। उनको कोई टेक्निकल कोई इशू है, उनको फंड का अरेंजमेंट कराना है, अगर मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें मैं अपनी टीम के लिए फैसिलिटी देता हूँ। वो काम आपको भी सीखना होगा। लीडर भाई
ऐसे नहीं बन जाता है। लीडर अपने अंदर आपको क्वालिटी पैदा करना होगी। जितने भी यहाँ हमारे पार्टनर्स बैठे हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें अगर आप समझ गए, 100% आप यहाँ पर कामयाब होगे, सक्सेस होगे। और जैसे कि सर ने कहा, संजय सर ने कहा, यहाँ पर जो जीएम बनेगा वो यहाँ पर को होस्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। को होस्ट किसी को मत बनाइए, सिर्फ आप रहिए। और हम बहुत जल्द यहाँ पर जीएम भी बनेंगे, वीआईपी भी बनेंगे, और जो आखिरी रहेंगे वहां तक भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। अपनी टीम को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर वाकई में दोस्त अपने अगर ड्रीम्स देखें, सपने देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक गजब का सिस्टम आप तक आज आप पहुंचा है, आपके पास आ गया है। आपने न्यू पार्टनर्स भी यहाँ बैठा ले होंगे, बस लग जाइए आज ही से और फिनटॉस का झंडा उठा लीजिए, और फिर देखिए आपके बिजनेस में कैसे चार चांद लगते हैं। ओके, थैंक्स, धन्यवाद सर जी। थैंक यू। यस बोरिया साहब। नमस्ते सभी फिनटॉच ग्रुप वासियों को, और हमारी जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर संजय सोनटके जी, हम तो मानते कि ये हमारे गुरु जी है, और बहुत बढ़िया तरीके से प्लान लेते हैं कि किसी भी बंदे को समझ में नहीं आता है, एक बार बिठा दो कहानी खत्म हो जाएगी। इतने प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी गाते गाते सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, वैसे संजय जी बहुत प्रेम करते हैं अपनी टीम को। और हम कभी भी आधी रात को भी कॉल करते हैं तो अच्छा जवाब, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी सर्विस देते हैं। तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं सब लोगों को कि जितना हो सके तो आप ज्यादा लोगों को बिठाएं, ताकि हम अपनी टीम को आगे बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टीम में जीएम बना सके। और मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं सभी लोगों को, कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई इतना कैसे देगी। तो मैं आपको, आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दे देना चाहता हूं कि जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी, इसके बाद लास्ट में जियो आया। तो सर तब एक महीने का 300 रुपये हम पे करते थे 1 GB डेटा का, और आज की डेट में देख लो जियो ने क्या तहलका मचा दिया मार्केट में, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई कि नहीं सर? जी। तो सर यही है कि आज बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट मार्केट में है, तो आप ये एग्जांपल लोगों को दिखा सकते हो। लोग बोले कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ से पैसा बहुत छाप रहे हैं, पर डे बेडरूम में बैठे बैठे हजारों डॉलर शाम तक कमा रहे हैं, और हमारे लोग यहाँ साले दिमाग में नहीं बिठा सकते। तो हमारे यहाँ लोगों की सोच है ना एकदम घटिया हो गई है। लास्ट में बोलेंगे कि नहीं ये सही था, तो इसके पहले ही अपना लो ना। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं कि किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना कोई भी चीज की, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। ठीक है सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, धन्यवाद सर। और हमारे कोहोस्ट से कोई जो बात करना चाहते हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? देखो यहाँ पे सारे लीडर्स हैं और सारे के सारे बिल्कुल अपने अपने एक्सपर्ट है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। बस हमको ठान लेना है कि मुझे करना है। और जब कोई भी चीज हद से बाहर जुनून के साथ हम करने लगते हैं ना, तो पूरी कायनात इकट्ठा हो जाती है दोस्तों उसको पूरा करने के। तो आप अपने अंदर ठान लो कि मुझे ये टारगेट इस टाइम में अचीव करना है। जैसे मैं मेरा बता रहा हूं, मैंने स्टार्ट किया, मैंने ये टारगेट किया था कि 8 दिन के अंदर जीएम बनना है और उसके 10 दिन के अंदर वीपी बनना है। तो दोनों कर दिया, और 1 तारीख के अंदर, अभी देखो आज कितनी 23 तारीख हो गई, 5 दिन बचे इस महीने के। 1 तारीख को एसपीपी का रैंक दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद अगले 15 दिन में एग्जीक्यूटिव का, और मार्च एंडिंग खत्म होते होते मैं आपको एमडी का रैंक दिखा दूंगा। ये होता है टारगेट कि नहीं, मुझे उस टारगेट पे काम करना है, चाहे मुझे 24 घंटे जगना पड़े। और यहाँ बैठे हुए काफी सारे लोग, विजय कुशवाहा जी है, रात को 2 बजे भी कॉल करते, तो उनको पूछिए कि रात को 2 बजे उनका कॉल अटेंड होता है कि नहीं होता है। रात को 2 बजे हम
अलग अलग लीडरों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में क्लियर करते हैं प्लान को, कुछ क्वेरी क्लियर करते हैं, दिन भर लगे रहते। इनके टीम के भी काफी सारे लोग, पूछो इनको, दिन भर कोई ना कोई कॉल आता रहता है, सर ये क्वेरी है, सर वो क्वेरी है, सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, दिन भर करते हैं हम लोग। तो आप भी अपने अंदर कुछ जुनून को लाइए, कुछ अपना गोल सेट करिए, और जब तक टारगेट बेस्ड काम नहीं करोगे दोस्तों, तो वही छोटी मोटी इनकम आनी है। किसी भी सिस्टम में बड़ी इनकम पानी है तो उसके पीछे पागलपन होना चाहिए। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जहां भी हाथ डाला है वहां रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। कोई भी कंपनी उठा के देख लो मेरी, जहां पे भी मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की, रिकॉर्ड ब्रेक कर देते। या तो करो ही मत, और करो तो फिर दिल से करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल 9:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।